दीप खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में, एक अनुभव नया कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ आओ आओ। दो खड़े जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से Om Shanti. Good evening and welcome to Yoga for Emotional Well-being Wellness के कोर्स में आप सबका प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि सब अपना प्रोग्राम में अच्छे से इन्वॉल्व होने के लिए अपना कैमरा टर्न ऑन करेंगे so that everybody is actively participating. Before we start the program, सभी अपना कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। थैंक यू। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में लेट्स स्टार्ट दैट योगा इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, दोनों का बैलेंस सिखाता है योगा हमें। एंड ओवर द इयर्स इट हैज फाउंड पॉपुलैरिटी इन अदर कंट्रीज एज वेल। सब स्टार्ट ये इंडिया से हुआ था, पूरे नेशन पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी proposed marking a day as the International Day of Yoga in his address at the UN General Assembly, and the proposal was endorsed by 175 member states, post which the United Nations recognized June 21st as a day of to celebrate yoga. So over the past 1.5 years, yoga has gained more importance due to the coronavirus pandemic. And accordingly, the theme for International Yoga 2021 has been decided by the UN to be Yoga for Well-being. So आज ही जो प्राइम मिनिस्टर ने जो नेशन को एड्रेस किया, so प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी has announced that India, along with United Nations and WHO, is launching an app called M Yoga, aiming to provide easy access to yogic practices all over the world. So due to all this, we are realizing that how important yoga is in our daily life. So not just physical, even emotional life. So उसी को ध्यान में रखते हुए we have organized this wonderful program for all of you, and our first speaker is Dr. Sujata Sharma ji. So before calling, I will just give a brief introduction of Dr. Sujata ji. Dr. Sujata ji Sharma has an MPhil in medical and social psychology. She's a gold medalist and a PhD in clinical psychology from NIMHANS, Bangalore, and is a practicing clinical psychologist for over 35 years. She has been working with children, adolescent, youth, families, couples and adults with psychological distress and mental illness. She has been involved as consultant with the National Institute of Aging, US,
and UNICEF, India for Development of Assessment and Training Material, Dr. Sujata Sharma ji has been a practitioner of Raj Yoga meditation and lifestyle of the Brahma Kumaris for more than 25 years. She has been a regular faculty of programs and public events in Brahma Kumaris and has also facilitated Vihasa, Value in Healthcare, a spiritual approach workshop for doctors and mental health professionals. So we are very lucky to have Dr. Sujata, an experienced person among us. Welcome, Dr. Om Shanti. Thank you. सबको मेरी तरफ से ओम शांति। हमारी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है ब्रह्म कुमारीज में, आप सब जानते हैं और करते भी होंगे। और गुड आफ्टरनून। आप आज वर्किंग डे है, सबके लिए टाइम निकाला है और आप इस प्रोग्राम में लाभ उठाने के लिए आए हैं, मैं समझती हूँ। एंड आई होप जो भी हम शेयर करने वाले हैं, जो मैं आपको अपनी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ टेक अवे पॉइंट्स मिलेगा और आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू आरती बहन फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और 25 इयर्स राजयोगा प्रैक्टिस के बाद मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, I am so grateful to Shiv Baba, the Supreme, for having given so many opportunities. सब हमारे लाइफ में ऑफ कोर्स हम राजयोगा बाद में ही सीखे हैं और राजयोगा प्रैक्टिस करना शुरू, बट जब से किया है बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में परिवर्तन आया है। मेरे अपनी ही पर्सनल जर्नी में परिवर्तन आया है और बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ पाया है। एंड आई वांट टू शेयर माय व्हाट आई हैव गेन्ड। एंड जो मैं एक प्रोफेशनल तौर पे जो मैंने सीखा है वो यूज़ करती हूँ, इंटीग्रेट करने की कोशिश करती हूँ, वो भी मैं आपको सामने रखना चाहती हूँ। सो एज यू नो, हमारी टॉपिक जो है योगा फॉर वेलनेस, और खासकर मेरा जो है मैं योगा फॉर वेलबींग पे बात करूंगी। एंड इसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, एक तो योगा है और एक तो इमोशनल वेलनेस या इमोशनल वेलबींग। तो मैं दोनों पे थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहूँगी ये कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। बिकॉज हम जब इमोशनल वेलबींग और इमोशनल वेलनेस बोलते हैं, हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है। तो ये क्या है, इमोशनल वेलनेस और वेलबींग क्या है? पहले तो हमको ये समझना चाहिए हमारी लाइफ में इमोशंस का क्या अहमियत है। सो आप जानते हैं इमोशन से सब कुछ हमारा लाइफ को रूल करता है। हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा सोच विचार वृत्ति, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आवर इमोशंस। और ये हमेशा एक डिबेट रहता है, इमोशंस पहले आता है या थॉट्स पहले आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, हमारा विचार पहले आता है, हमारा संकल्प पहले चलती है और उसके बाद हमारा उस पर डिपेंड होता है, हमारा जैसे संकल्प चलता है हमारा इमोशंस भी वैसे होते हैं। पर जब हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, हम डायरेक्टली हमारे इमोशंस को चेंज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा सोच को कैसे बदले। तो इमोशंस और सोच साथ साथ चलते हैं और इनफैक्ट पता भी नहीं चलता है जब हमारा सोच और संकल्प इमोशंस में बदल गया, और बदलते बदलते इतना जल्दी वो हमारे व्यवहार में सामने आ जाता है। तो हम इसको साथ ही डील करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, वो क्या है, इमोशनल हेल्थ क्या है? मेनली इमोशनल हेल्थ वो है जो हम अपने, जो हमारे मूड है, हमारे फीलिंग्स है, हमारे भावनाएं अंदर,
हम अपनी भावनाएं हम कैसे महसूस करते हैं, हाउ डू वी फील अबाउट आवरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल हेल्थ। क्योंकि बाकी लोग कैसे फील करते हैं वो अलग बात है, वो हमको अफेक्ट करता है, बट हम अपने अंदर क्या फील करते हैं, हम अच्छे फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, या इतने अच्छा नहीं है, खराब महसूस करते हैं, तो वो इमोशनल हेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे डिपेंड करता है उसके बाद हम इस वर्ल्ड में कैसे डील करते हैं। अगर हम अच्छे मूड में हैं, हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, हम बहुत जो भी हम कर रहे हैं काम में उसमें हम सेटिस्फाइड है, सो सब चीज हम कैसे दुनिया के सामने पेश आते हैं, दुनिया के सामने कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। सो हमारा वर्ल्ड व्यू जो है हमारे इमोशंस पे एक उस पे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इमोशनल हेल्थ में एक और इम्पोर्टेंट ये माना जाता है, इट इज द एब्सेंस ऑफ अ मेंटल डिजीज और अ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं तो हमारे मानसिक तौर पे कोई बीमारी नहीं होगी, मन से हम स्वस्थ रहते हैं, मन से हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये एक निशानी है जो हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी है। मेंटल इलनेस और मेंटल डिजीज क्या होता है आप सब जानते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस रिएक्शंस है, डिप्रेशन है जो आजकल बहुत कॉमन। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना फैला हुआ है आजकल, हर किसी फैमिली में किसी न किसी को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल चल रही है पोस्ट कोविड। क्योंकि कोविड इस पैंडेमिक के दौरान लोगों को जिंदगी जैसे बहुत तेजी से उसमें बदलाव आई है, और सोसाइटी में और हेल्थ सिस्टम में, गवर्नेंस में, सब तरीके से स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं वो मानसिक तौर पे लोगों को बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं, बीमारी पैदा कर देते हैं। डिप्रेशन है, और कभी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, सोने की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, खान पान की, और ये सब एक मेंटल of illness माना जाता है। Then the second aspect of emotional good health is that हम क्या अपने भावनाओं को समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह क्लियरली समझ पा रहे हैं और उसको व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस और उसको हम कैसे बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई बार हम बहुत सारा फील करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दब जाते हैं हमारे इमोशंस अंदर, क्योंकि हमको या तो शब्द नहीं है कहने का, या हम कह नहीं पाते हैं, कोई और कारण की वजह से हमारी हिम्मत नहीं है। तो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी इमोशनल हेल्थ में आ जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम अपनी स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो लाइफ की इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा है, हम उससे कोई एस्केप नहीं है हमारी। सो हम स्ट्रेस से हम हावी हो जाते हैं या उसको सामना कर सकते हैं, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम ढूंढते हैं, कोप अप कर सकते हैं, या स्ट्रेस के सामने बिल्कुल हिम्मत हार के मानसिक तौर पे डूब जाते हैं और हलचल में आ जाते हैं। ये सब भी डिटरमिन करता है हमारा इमोशनल वेलबीइंग कैसा है। और स्ट्रेसफुल इवेंट जो है, जो कभी कभी कुछ समय के लिए आता है, कुछ लंबे समय के लिए चलता है। जैसे कि हमारे घर में कोई बीमार है तो कुछ समय के लिए बीमार होते हैं, फिर ट्रीटमेंट होते ठीक हो जाते हैं। बट पैंडेमिक जैसे सिचुएशन जो आजकल चल रही है वो कोई लंबे समय से चल रही है, 1.5-2 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, और इसमें स्ट्रेस और ज्यादा महसूसता होती है। और ऐसे समय में नॉट ओनली इंडिविजुअल, पूरी हमारी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, पूरी देश विदेश, पूरी दुनिया इसके
इसके नेगेटिव इफेक्ट्स से गुजर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेस है सिर्फ केवल हमारी अपने के साथ सीमित नहीं है, पूरे आसपास फैली हुई है। तो वातावरण में स्ट्रेस है, वायुमंडल में स्ट्रेस है, तो उसको भी डील करना बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको कुछ इमोशनल वेलबींग के लोगों के बारे में बात करें। अगर कोई इमोशनली स्वस्थ है, वो कैसे उनका पहचान होगी, उनके लक्षण क्या है, वो कैसे उनके व्यवहार कैसे होगा, वो कैसे पहचाना जाएंगे। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स में बता दूंगी, आप देख लीजिए, अपने आप चेक कर सकते हैं वेदर आपके अंदर ये कुछ लक्षण है। तो आप है, काफी है, तो आप समझ सकते हैं आप बहुत इमोशनली हेल्दी हो। नहीं है तो आपके लिए कुछ अपने पे काम करने की जरूरत है। तो पहली बात तो है, जो इमोशनली हेल्दी है उनमें उमंग उत्साह बहुत हो जाती है, लाइफ में एक जीने का इच्छा होता है, वो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक निशानी है। दूसरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप में आपके अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानना, कमजोरियों को पहचानना और स्ट्रेंथ को भी पहचानना, और जैसे आप हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें, और जहाँ पे अपने को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है इम्प्रूव करें, बट अपने से खुश रहना। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कोई भी परिस्थिति जो उनकी लाइफ में सामने आती है, उसको उनको जैसे उस परिस्थिति को पार करना है, उससे कैसे डील करना है, उस परिस्थिति को नेविगेट करके आगे कैसे निकलना है, ये चीज उनके अंदर होती है, ये गुण होती है उनके अंदर। They are self-aware what to do and how to do and when to do it to manage crisis in their life. जैसे आजकल चल रही है, तो हम लोग अगर जितना हम टेक्निक्स और ये सीखते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और एक बात है, जो इमोशनली हेल्दी है वो अपने पे ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी स्वास्थ्य में ध्यान रखते हैं, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बट इमोशनल, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, सब सोशल हेल्थ, सब प्रकार की हेल्थ के ऊपर उनका ध्यान रहता है और अपने आप को केयर करते हैं। सेल्फ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जब आप अपने केयर करते हैं दूसरों को आप और अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। उनका माइंड जो है वो ओपन माइंड होगा, उनके थॉट प्रोसेस होते हैं वो खुला रहता, मतलब ऐसे नहीं है नैरो माइंडेड, हर चीज के लिए वो एक इच्छा है सीखने का, ज्ञान लेने का, समझने का, दूसरों को समझने का, दुनिया को समझ, तो वो जो क्यूरियोसिटी है और इंटरेस्ट है वो उनके अंदर पाया जाता है। और ऑफ कोर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, इमोशनली हेल्दी पीपल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने आप को या दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी से भागते नहीं है, एस्केपिज्म टेंडेंसी नहीं होती है उनमें, और यू हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस, जो कहते हैं ना मानसिक संतुलन, बैलेंस रहता है उनके, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा नहीं। इसके बारे में बाद में और बताऊंगी, बट दे हैव अ सेंस, हर चीज सही तरीके से, सही तौर से, सही समय से सब कुछ बैलेंस में चलेगा, बिकॉज देयर इमोशंस आर इन बैलेंस। देन दे आर ऑल्सो वेरी ट्रस्टवर्थी, मतलब वो उनके अंदर करुणा भाव है, काइंडनेस है, और दूसरों के लिए जेन्युइनली वो केयर कर पाते हैं क्योंकि वो अंदर से खुश है, एंड वो एक अच्छे नागरिक होते हैं, मतलब दे आर गुड सिटीजन जो समाज की रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अपने नहीं मन मर्जी करना, कुछ भी करना, समाज के खिलाफ कुछ करना, वो वैसे नहीं होते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जो इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल्स की। नाउ अगर वो इंडिविजुअल इमोशनली हेल्दी नहीं है, क्या कुछ उनके भी कुछ लक्षण होंगे,
तो उसमें भी एक निगाह मार लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट ये लोग जो अंदर से मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं है, उनका इमोशंस थोड़ा अप एंड डाउन होता है, चंचलता में होते हैं, इरिटेबल नेचर है, चिड़चिड़ापन है, चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और सामना नहीं कर पाते हैं सिचुएशंस को। इनकी कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा कम रहता है, तो कोई काम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं यूजलेस हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझना, वो ज्यादा फीलिंग होता है। बहुत जल्दी थकावट में आ जाते हैं, कई प्रकार की बॉडी एक्स, पेन्स, ये सब हो सकता है क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है अपने आप से या दुनिया से। और इनकी कई बार खाना पीना भी कम हो जाता है, नींद की दिक्कतें आ जाती है और जनरली वो कुछ अंदर से खुश नहीं रहते हैं। कभी कभी वो ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, वायलेंट रिएक्शंस में भी आ जाते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं और एक अंदर से बेचैनी रहता है, किसी चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है और हमेशा लगता है कुछ कमी कमजोरी अपने आप में या दूसरों में वो दिखते रहते हैं, उनको कंप्लेनिंग नेचर हो सकती है। तो ये इमोशनली अनहेल्दी इंडिविजुअल्स हैं। अब हम आते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इमोशनली अनहेल्दी है, जिनको अपने ऊपर काम करना है, तो उसमें योगा का क्या रोल है? तो पहले तो योगा का रोल जानने से पहले हम ये समझना चाहिए योगा क्या है, क्योंकि आजकल योगा का बहुत बहुत मीनिंग्स सामने आते हैं। और जब इंटरनेशनल योगा डे आज सेलिब्रेट जब कर रहे हैं और ये ज्यादातर उसको योगा सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आता है, लोग आसना करते हुए पिक्चर आता है, जिसको हम हठ योगा बोलते हैं। तो ये हठ योगा में आसनास की इम्पोर्टेंस होती है, वो योगा का एक हिस्सा है, क्योंकि योगा का असली मीनिंग आई एम श्योर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी और एक्सप्लेनेशन दीदी देंगे अपनी नेक्स्ट टॉक में। बट मैं ब्रीफली बताऊं, योगा मीन्स कनेक्टेडनेस, कनेक्शन। योगा कम्स फ्रॉम द वर्ड युज विच इज कनेक्शन। सो क्या कनेक्शन है? कनेक्शन विद वन सेल्फ या वंस हायर सेल्फ, और दुनिया से, आसपास की लोगों से उसका कनेक्शन है, हमारा वायुमंडल से कनेक्शन है और इस दुनिया से कनेक्शन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो हमारी सुप्रीम से कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन। किसी भी नाम से आप उनको पहचानते हैं, जानते हैं, बोलते हैं भगवान, ईश्वर, कुछ भी नाम दे रहे हैं, हायर पावर, सुप्रीम पावर, एनर्जी, ये सब जो है वो उनके साथ जो कनेक्शन जोड़ते हैं वो भी एक कनेक्शन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन। और जो अपने आप से वेल कनेक्टेड है और आसपास की लोगों और दुनिया से वेल कनेक्टेड है, वो भगवान से भी वेल कनेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि और सारे कनेक्शन की जो रचयिता है वो वही है। सो द कनेक्शन इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ हम उस कनेक्शन को भूल गए हैं और ओवर सो मेनी बर्थ्स एंड रीबर्थ्स हम उस कनेक्शन को बिल्कुल कहीं पे कहीं किनारा कर दिया है। और योगा में हम इस कनेक्शन को रिवाइव कर सकते हैं। बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है। और योगा में अनलाइक जो आजकल अलग अलग टाइप ऑफ आसनास की बात हो रही है, फिटनेस रिजीम बन गई। टुडे एवरीबडी थिंक्स योगा एज फिटनेस, उसके लिए इस्तेमाल होता है और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। बट योगा एक्चुअली इज अ वे ऑफ लाइफ, और इसको अष्टांग योगा भी बोलते हैं, जिसमें बहुत प्रैक्टिसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द वे ऑफ लाइफ। सो यम नियम ये दोनों हैं जो शुरू की
इट इज कॉल्ड द फर्स्ट 2 limbs ऑफ योगा, जिसमें हम सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस को वो करते हैं और सर्टेन वैल्यू सिस्टम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं हमें, लाइक नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्यता, ब्रह्मचर्य, बहुत चीजें आती हैं जिसमें आप उसको पहले अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में एक डेली लिविंग में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल लाएंगे। फिर उससे हम थ्रूअर्ड्स द बॉडी आसनास पे जाते हैं, जिसपे बॉडी माइंड के कनेक्शंस में और बॉडी को अलग अलग रूप में हम आसनास के जरिए सेल्फ कंट्रोल और बढ़ा सकते हैं। फिर प्राणायाम आता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है जहाँ हम प्राणा को बढ़ते हैं, अंदर बढ़ाते हैं, और प्रत्याहारा है जो हम विड्रॉ करते हैं, वर्ल्ड और सेंसेस से विड्रॉ करके कछुआ जैसे हम अपने अंदर जाते हैं, अंतर्मुखता वाली बात होती है उसमें। और फिर धारणा होती है जो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, हम अंदर जाके अपने ऊपर, भीतर में अपने ऊपर हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। फिर ध्यान आता है जो हम मेडिटेशन बोलते हैं, एक्चुअली कनेक्शन with the object, with the power, with supreme, with anything. And last stage so समाधि कहते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जो हम इस दुनिया में रहते हुए भी ना रहते, उस स्टेट ऑफ बैलेंस एंड कंप्लीट, जो कहते हैं withdrawal yet being there. So these are the 8 stages जो हम आजकल जो फिटनेस में ये सब की बातें नहीं होती है, सिर्फ एक्सरसाइजेस की बात होती है, सो एंड बहुत कमर्शियलाइज भी हो गया। एंड हमारे राजयोगा जो हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्म कुमारी, इसमें हर चीज का इस सब कंपोनेंट्स का हिस्सा है वो, और उसमें सब समा जाते हैं राजयोगा में। बहुत एंशिएंट है, भगवद गीता में मेंशन्ड है वो। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड इट टीचेस अस हम एलिवेटेड तरीके से और कैसे हम अपने लाइफ को जी सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, इट इज कनेक्टेड कनेक्शन। कल मैं एक टॉक सुन रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट उसमें निकल आया। एक स्वामी जी रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में वो बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कंपेयर किया दिस योगा एज www, वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम इंटरनेट को बोलते हैं ना, www. वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरी दुनिया एक वेब है, सब कनेक्शंस में है और हर प्रकार के आपस में इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रहा है। वैसे हमारी योगा भी एक कनेक्शन है जहां हम हर चीज से, हर प्राणी वस्तु, हर चीज से कनेक्टेड है, और वो सब कनेक्शन है एक ऊपर सुप्रीम से कनेक्शन। So World Wide Web is a metaphor for God. That is इतने सारे connections जिन्होंने पैदा किया है, रचाया है, और उसका पासवर्ड जो है वो कह रहे थे वो पासवर्ड है, हमारे मंत्र है। इस कनेक्शन के पासवर्ड हमारे मंत्र है, और हमारा मंत्र राजयोगा है, मन मना भव। उस एक शब्द से हमारे पूरे सब कुछ उसमें आ जाते हैं। So it's a very interesting comparison. So I won't go much into Raj Yoga, but क्या है राज योगा में हम अपने अंदर के क्वालिटीज को पहचानते हैं, हमारे ओरिजिनल नेचर को पहचान के, हमारे इनर सेल्फ को पहचान के, फिर हम सुपीरियर, सुप्रीम, हायर सेल्फ, सुपर कॉन्शियसनेस, भगवान, उनसे कनेक्ट करके, और क्योंकि हमारी इनर क्वालिटीज जो है, सोल की क्वालिटीज है, वो ईश्वर की क्वालिटीज भी है, विच इज पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, लव, पावर, नॉलेज, सतोगुणी जो कहते हैं। सो वी हैव तो 7 क्वालिटीज जो हम वहां से कनेक्ट करके लेते हैं, और इन क्वालिटीज का हम इम्बाइब करते हैं, उसके साथ उसको बढ़ाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल को रेज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे असर पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर हम खुश रहेंगे तो क्यों ना ये सब होगा। और जब हम सुप्रीम से, सोर्स से ले रहे हैं डायरेक्टली, तो ये एनर्जीज तो बढ़ना ही है, क्वालिटीज तो बढ़ना ही है, और एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, ये कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद होता है। और
जब ये बॉडी, माइंड और सोल, हमारी स्पिरिट और अंदर की शक्ति सारे अलाइनमेंट में है, एक साथ है, सिंक्रोनाइज्ड है, एक साथ काम करते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ भी अच्छा है, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होता है, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी में आ जाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तो अंदर भी हम अपनी अंदर की सोल की पावर्स को बढ़ाते हैं, हमारा अंदर की डिविनिटी को बढ़ा देते हैं। सो व्हाट डज राजयोगा डू टू अस, हाउ डज इट हेल्प, हमारी वेलबींग में इसका कैसे एक बहुत अहम contribution है. Quickly in points, I'm going to just tell you. It gives peace of mind, harmony, joy, happiness, संतुष्टता, खुशी और inner power, energy, हमारी सोच विचार पे क्लैरिटी, क्लियर माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी. और अगर देखें वो कैसे करता है, क्योंकि इनर हार्मनी जब होता है, जैसे मैंने कहा माइंड बॉडी सोल जब अच्छे हेल्थ में ये तीनों हमारे अंदर सब सही रहता है, हमारे ऑटोमेटिकली वेलबींग अच्छा होगा होलिस्टिकली. इट कैन ऑल्सो एलिमिनेट नेगेटिव इमोशंस को, वो हमारे अंदर से निकालने में मदद करता है राजयोगा. क्योंकि कोई भी नेगेटिव इमोशन है, जैसे चंचलता है, उलझन है, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत गुस्सा होना, दुखी रहना और चिंता में रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब जो है नेगेटिव इमोशंस है, ये सब बाहर निकालने में हमारी मेडिटेशन, जो राजयोगा मेडिटेशन है, वो बहुत बड़ा उसमें एक टेक्निक है, एक वे ऑफ लाइफ है. क्योंकि आप इसके जरिए आपकी नेगेटिव भावना को बाहर निकाल ही सकते हैं, मेडिटेशन में ही निकाल सकते हैं, विजुअलाइज करके निकाल सकते हैं. बहुत तरीके हैं, आज आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस भी हो जाएगा. फिर इट ऑल्सो मेक्स यू मोर पीसफुल एंड काम, शांत स्वभाव पैदा कर देता है. अपना ट्रू नेचर जो शांति है उसको उभरने में मदद करता है, और आप एक रिलैक्स्ड महसूसता फील कर सकते हैं. पूरा दिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, पूरे दिन आप ये फील करेंगे. और आपकी बॉडी की नर्वस एक्टिविटी जो है, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, वो भी शांत हो जाता है. वो एक्टिविटी भी लोअर गियर में आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये शांति महसूस कर सकते हैं अंदर. हमारा एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकता है. तो उससे क्या होता है, हम बहुत खुश रहना सीख लेते हैं और एनर्जी बढ़ जाती है. एनर्जी बढ़ने से काम अच्छा होता है और हम लाइट भी महसूस करते हैं, लाइट और पावरफुल भी लगता है. हम कुछ भी कर लेंगे और अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें हमारी ज्यादा चिंता नहीं चलती है, बिकॉज अंदर से ही वो फीलिंग इमर्ज होता है. फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी वो प्रमोट करता है. कैसे पॉजिटिविटी? हमारी मन, वृत्ति और व्यवहार में, तीनों में पॉजिटिविटी होती है, जो दिखाई देता है. क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमारा बीज होते हैं और उससे सब कुछ एक साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं. हमारी आउटलुक है जो लाइफ में, वो भी पॉजिटिव रहता है. हम सब कुछ जो हमारे साथ होता है, हमारे सामने होता है, उसको देख के हम बहुत ज्यादा हलचल में नहीं आते हैं. हमको लगता है ठीक है, ये आया है, ये क्राइसिस आया, ये सिचुएशन आई, ये जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि हम अंदर से पॉजिटिव है, हमारे अंदर होप है, हमको पता है वो ठीक हो जाएगा. और उसके बाद है हमारी जो एटीट्यूड में है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. हमारे कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव इमोशंस बढ़ती है. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोगों को प्यार और स्नेह से कैसे डील करें, ये क्वालिटी बढ़ जाती है. प्यार करने की, स्नेह से लोगों के साथ व्यवहार करने की और सहयोग देने की, और हमारी टॉलरेंस और पेशेंस वो भी बढ़ जाता है. क्योंकि सहन शक्ति
जब आपको पता है सब टेम्परेरी है और सब ठीक हो जाएगा, हमारा सहन शक्ति भी बढ़ जाती है और पेशेंस, धीरज बढ़ जाती है। इससे हम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं और अपनी आसपास के लोगों के ऊपर ज्यादा केयर कर सकते हैं और क्राइसिस और लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को बहुत आसानी से हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में सब क्लियर है, माइंड में पता कैसे डील करना है, माइंड में पता है हम शांत रहने से डील हो जाएगा सब कुछ. सो इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल ऑफ इमोशनल रेगुलेशन. हमारा मूड्स जो है बहुत ज्यादा उछल पुछल नहीं होता है, स्टेबल रहता है, एक रस स्थिति जो बोलते हैं, एक जैसा एक समान, हमेशा हर वक्त एक बैलेंस में रहना, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब मेडिटेशन से हम पा सकते हैं. हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा काम करने का शक्ति और काम करने का तरीके बहुत ही अच्छा रिफाइन हो जाते, परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो जाते, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाते, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है. हम अपने आप को बहुत ऊंची नजर से देखने लग जाते हैं, जो भी अपनी संतुष्टता को और बढ़ता है. तो इट गिव्स अस ओवरऑल सेंस ऑफ अ बेटर वेलबीइंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑल्सो गिव्स अ राजयोगा मेडिटेशन में एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी हम डेवलप करते हैं, जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाते हैं. हम अपने आप को परिस्थिति से दूर रख के परिस्थिति को आउटसाइड से देख पाते हैं, जिससे हमको क्योंकि उसमें हम इमोशंस को बाहर रखते हैं ना, जब इमोशंस को बाहर रखते हैं वो और अच्छी तरह उस परिस्थिति से सामना कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और उसको सोल्यूशन ढूंढ के उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, पार कर सकते हैं. सो दिस एटीट्यूड ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वर वैराग्य जो बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, एंड जिसकी वजह से हमारी सफरिंग, हमारा पेन, अंदर की दुख दर्द सब कुछ कम हो सकता है. एंड इसमें हम बॉडी से, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट गोल ऑफ राजयोगा है, टू बिकम सोल कॉन्शियस फ्रॉम बीइंग बॉडी कॉन्शियस. और एक और योगा का और मेडिटेशन की एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है, हम कैसे एक शुभ चिंतक बनना सीख जाते हैं, दूसरों के लिए सोचना. इसमें इंग्लिश में एक वर्ड है अल्ट्रुइज्म. अल्ट्रुइज्म मतलब विदाउट सेल्फिशनेस, विदाउट सेल्फ सेंटर्डनेस, आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए आप मदद कर सकते हैं. यू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, उनको कंपैशन दिखाते हैं. यू आर गुड टू अदर पीपल, में कोई अपना फायदा नहीं देखते हैं. इसको ट्रू अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, जो हम शुभ भावना, शुभ कामना से हम शुभ चिंतक बनते हैं. इट इज अ इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस मेडिटेशन. ऑटोमेटिकली हम ऐसे बन जाते हैं और देने का भाव आ जाता है, जॉय ऑफ गिविंग. इट्स अ वेरी बिग जॉय, हमारा खुशी को बढ़ा देता है. और लास्टली इट गिव्स अस अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. सो सात्विक लिविंग से हमारी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे जीने का तौर तरीके इतना अच्छा और कंट्रोल्ड हो जाता है that we are able to be in that state of constant connectedness. और एक सच्चाई के साथ हम जी सकते हैं at the level of soul consciousness, जिसको हम meditative lifestyle कहते हैं. Ultimately, Raj Yoga leads to a meditative lifestyle. It is not just half an hour, 1 hour of meditation. और इसी प्रकार हम अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत ऊंची स्थिति में उठा सकते हैं, पा सकते हैं और लाइट रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे. और कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उसको एक काम, क्वाइट, पीसफुल माइंड से हम इसको सामना करके इसको दूर करेंगे. और इससे और अच्छा क्या हो सकता है इमोशनल हेल्थ के लिए? बैलेंस with all the positive qualities. There are many other aspects of Raj Yoga which I don't want to go into because
बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन स्टॉप करूँगी और आई रिक्वेस्ट आरती बहन to take over. Sorry if I have overshot the time a little bit. No, perfectly fine, दीदी. You beautifully expressed your views कि बहुत ज़रूरी है. Situation कैसी भी है, that's not in our control. वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा कि we will get stuck in our homes only. We won't be able to move out. पर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, पर उसे हैंडल कैसे करना है और पॉजिटिवली, पीसफुली, हैप्पीली उसे हैंडल कैसे करना है वो हमारे हाथ में है. सो वो आपने बहुत ब्यूटीफुली कवर किया. फिर इसमें राज योगा मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको और अच्छे से कवर करेंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर उर्मिल दीदी. Before I give it to Urmil Didi, I'll just give a brief introduction of Urmil Didi. Urmil Didi is academically holds a master's degree in physics from Delhi University. She has a strong training and administrative experience of being a corporate trainer for more than 35, or rather 45 years now. She has a creative mind that makes her popular among people of all ages. She adds a unique touch to all the work she undertakes and is a strong believer of the fact that with determination, impossible can always be made possible. And she is a great motivator for youngsters and has conducted various workshops for youths, teachers, and teachers underlying the solution for the problems faced by teenagers. So we are again very lucky to have Urmil Didi with us. Thank you, Urmil Didi. Over to you. Thank you. ओम शांति. इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी ने अपने लिए समय निकाला है. बहुत बहुत मुबारक हो सभी को. इसका मतलब हमने थोड़ा सा योग के इम्पोर्टेंस को समझा है. बहुत सी ऐसी बातें हैं योग से रिलेटेड जो हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं है, जिस कारण से कई बार हम लोग जो मेंटल वेलबींग के लिए हमें राजयोगा मेडिटेशन करना चाहिए, हम उसको नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हम तो फिजिकल कर लेते हैं, शरीर के लिए हम लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना खा लेते हैं, सब कर लेते हैं. लेकिन एक बात जो सोच में आती है वो ये आती है कि दुनिया के अंदर आज लोग इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना वरिड हैं, कितनी तरह की जो उनकी नेगेटिव इमोशंस हैं वो उनके ऊपर डोमिनेट कर रही हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं. एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आप देखते हैं कि अगर ट्री को हम चाहते हैं वो ग्रो करे अच्छी तरह, तो हम उसमें पानी कहाँ डालते हैं? कहाँ डालते हैं पानी? डेफिनेटली हम उसके जड़ में, रूट में पानी डालते हैं ना. अगर आप समझो कि आप तने को पानी देना शुरू कर दें, उसकी जो टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, अगर हम उनको पानी देना शुरू कर दें और उसके ऊपर जो सुंदर फल लगा है अगर हम उसको पानी देना शुरू कर दें, तो आपको लगता है कि पेड़ बढ़ेगा पेड़ और वो फल देगा? नहीं देगा ना. तो एक समझदार व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है. इवन एक बच्चे से भी पूछेंगे ना तो उसको भी ये मालूम होगा कि हमें पानी जो देना चाहिए ट्री में वो हमें उसकी जड़ में देना चाहिए. तो इसी तरह से जो मन है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को ग्रो करने में. ये हम सभी जानते हैं कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के. एक तो फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं आजकल. योगा अवेयरनेस आई है तो फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कई और तरीके से हम लोग उसका ध्यान देते हैं. सात्विक डाइट लेते हैं, लाइट डाइट लेते हैं, टाइम पर लेते हैं. तो शरीर पर हमारा अटेंशन बहुत अच्छा गया है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि जब किसी चीज की अवेयरनेस आती है तभी हम उसके बारे में सोच पाते हैं. दूसरा है मेंटल, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं.
इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हम लोगों ने कलेक्ट कर ली, लेकिन अब ज्यादा इंफॉर्मेशन होने से भी क्या है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हमारे ऊपर हो गया कि कई बार हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। सोशल के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी देखने में ये आ रहा है कि जितना हम सोशलाइजेशन आजकल कर रहे हैं, उतना ही हम अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है? क्या कहेंगे, जुड़े हुए हैं या नहीं? कम जुड़े हुए हैं ना। किसी का आना हम बाहर से तो कहेंगे कि हाँ आप आए, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अंदर से क्या सोच रहे होते हैं? सोच रहे होते हैं अरे ये इस टाइम क्यों आ गए, अभी तो हमने खाना खा लिया, अब शायद इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, अभी तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, ये क्यों आ गए? तो अंदर में हमारे कुछ और चल रहा होता है, जिस कारण से रिलेशंस के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशंस में भी नहीं है। अब चौथा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल माना सीड, मन, मेरे मन का क्या हाल है। अब सीड में जब तक हम लोग पानी नहीं डालेंगे, उस पर तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी तक तो हमारा यही बिलीफ था सबका कि जब होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, जब बूढ़ी अवस्था आएगी, ये कोई अभी टाइम थोड़ा ही है इसको करने का, ये तो जब हम लोग सब कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेंगे तब हम करेंगे, which is a wrong belief. I think we need to change it now according to the time. तो देखो योगा हमने फिजिकल के लिए किया, लेकिन जैसा सुजाता बहन भी बता रहे थे कि हमारे माइंड और बॉडी का बहुत डीप कनेक्शन है। अब मन को हम स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, उसके अंदर हमारी जो दो इमोशंस होती हैं, एक तो लव की और एक फियर की, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब देखो अगर हम अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, माना अपने आप को हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, मेरी पॉजिटिव इमोशंस हैं। जितना मेरी पॉजिटिव इमोशंस होती चली जाती हैं, तो वो मेरे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बड़ा स्ट्रांग बनाती हैं और हमें हेल्दी बनाती हैं। लेकिन अब देखो जैसे डर की हमारे में क्या होगा, आजकल ये कोविड का पीरियड चल रहा है, तो हम लोगों को संकल्प है क्या होगा, कैसे होगा, उनके परिवार में ये चले गए, अपनी ही सोच नहीं चलती, दुनिया तक की हमें सोच चलती है, मेरे घर में ये बीमारी है तो क्या होगा, कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क की बना रहता है, और कई बार कुछ हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से वो जो फियर की इमोशन, चाहे वो वरी के रूप में है, घर में कहीं किसी को बात करने में डर लगता है, या कोई बच्चे पास होंगे कि नहीं होंगे, कोई घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, हमें कुकिंग करनी पड़ जाती है, अरे अब क्या होगा, तो क्या होता है उस समय, हाथ पांव फूल जाते हैं ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जितना भी ब्लड है वो हमारे पांव की तरफ चला जाता है और हमारी हीलिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हमको राज्यों का मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। देखो हम कहते भी हैं दैट वी आर ह्यूमन बीइंग, इस चीज को नोट कर लेना। ह्यूमन शब्द जो है वो ह्यूमस से बना है, जिसका मतलब होता है सॉइल अर्थात मिट्टी। अब ये शरीर 5 तत्वों बना हुआ है, इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज योगा जरूरी है। लेकिन जो बीइंग पार्ट है, बीइंग पार्ट जो है, जो एनर्जी मेरे अंदर काम करती है, उसके लिए चाहे हम उसे ध्यान कहें, चाहे मेडिटेशन कहें, या हाईएस्ट मेडिटेशन जो हमारे में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है कि हमारी लाइफ ही बदल जाती है, तो वो है राजयोगा मेडिटेशन। हम लोग कहते हैं हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। अब हेल्दी रहने के लिए खाली हम शरीर को नरिश करेंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे ना। अगर हेल्दी वर्ड का हम लोग एनालिसिस भी करते हैं तो हम देखते हैं हील दाय, दाय को हील करना, उसकी एनर्जी कैसी है, मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी है, उस पर ध्यान देना। इलनेस को भी हम कहते हैं आई लैक लव, आई लैक लव, मुझे प्यार चाहिए। हम वो दूसरों में ढूंढते हैं, परिस्थितियों में ढूंढते हैं, साधनों में ढूंढते हैं, व्यक्तियों में ढूंढते हैं, लेकिन कोई हमें आज अप्रिशिएट करता है, कल कोई हमें करेगा या नहीं करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। सो इसलिए राजयोगा इज द हाईएस्ट मेडिटेशन जो हमें सेल्फ सॉवरन बनाता है, इसीलिए हम इसको राजयोग कहते हैं। राज माना जैसे कोई राजकुमार का बेटा, सॉरी जो राजा का बेटा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं ना। ऋषियों में कोई सबसे बड़ा ऋषि होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं,
राज ऋषि बोलते हैं। इसी तरह से चाहे वो हम कहें बुद्धि योग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे संन्यास योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, या फिर वो हठ योग है, सब योगों के अंदर जो सब योगों का राजा है वो है राज योग। इसलिए हम इसको किंग ऑफ ऑल द योगास कहते हैं, राज योगा। सारे योगा इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि बुद्धि से कनेक्शन रखना होता है। इसी तरह से ज्ञान के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें योगा सिखा दो, तो सोचते हैं कि शायद कुछ दिखेगा योग के अंदर। अब योग में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर में कितनी अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी मेरे में नेगेटिव साइड है जिसको मुझे एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं अपने आप को देखूं कैसे। दूसरों को तो बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने को मुझे कैसे देखना है उसका आज हमको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इसमें बुद्धि योग भी आ जाता है क्योंकि बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं। संन्यास योग भी आ जाता है क्योंकि बुराइयों का हमें संन्यास करना है। इट्स नॉट दैट हमें अपनी फैमिली को नहीं देखना। हमारे सारे देवी देवता आप देखो कमल फूल पर दिखाए जाते हैं, विच मीन्स कि दुनिया में रहते हुए we have to live life like lotus। इसी तरह से भक्ति योग भी इसमें आ जाता है क्योंकि इट्स विद लव। जितना हमारा परमात्मा के साथ लव होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी मैच बहुत अच्छे से हो जाता है और हमें प्राप्ति की अनुभूति होती है। अब हम कहें जी हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, तुम तो बड़े बलवान हो, तो फिर कैसे बात बनेगी। हम नीचे की ओर जा रहे हैं, उसको हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं कि आप तो सो एंड सो, तो फिर हम आपस में एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे ना। तो अगर एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, सो आई नीड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ। जितना हम अपनी हाई एनर्जी करते हैं, वाइब्रेशन हमारा ऊंचा होता है, उतना ही हम भगवान की ओर जाते हैं। तो इसलिए राजयोगा मेडिटेशन, जैसे कि डॉक्टर सुजाता ने भी बताया कि राजयोगा में योग शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब योग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, लिंक, रिलेशनशिप। जब किसी का किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसके उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अब सोचो कि अगर मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा हो जाए, कनेक्शन मेरा अपने साथ अच्छा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जब मेरा कनेक्शन मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, इट मीन्स आई एम चार्जिंग माई बैटरी। और जो हम सोचते हैं, मानो मैंने अच्छा सोचा अपने लिए कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है, यही शब्द अगर मैंने सोच लिए तो ऑटोमेटिकली अगर घर वाले, मेरे घर से भी कोई बाहर निकलेगा या मैं घर से बाहर निकलूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो हमारे सामने आएगा तो उसको देख करके हम कौन से वाइब्रेशंस देंगे? अच्छे देंगे या नहीं देंगे? देंगे सावित्री बहन, देंगे ना। और यदि कोई हमारे सामने आएगा, हम कहेंगे नहीं जी, अंदर में है कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो पड़ोसी निकलेगा तो एकदम क्या होगा? क्या करेंगे फिर हम दलीप भाई? उसको देख करके हम लोग साइड करके निकल जाएंगे, isn't it? साइड करके निकल जाएंगे ना उसको देख करके। तो कितना फर्क हो गया, कितना फर्क है। तो इसलिए योग माना कनेक्शन। सबसे पहले देखना है कि मेरा अपने साथ कनेक्शन है या बाहर वालों के साथ है। ऑल द टाइम वी थिंक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। देह और देहधारियों के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा नाता कैसा है, मेरा पोता कैसा है, मेरा बेटा कैसा, सारा दिन वी आर ऑन देम। इट डज नॉट मीन कि हम उनका ध्यान ना रखें, जरूर रखें, लेकिन उनके प्रति हमारी पॉजिटिव वाइब्स कितना जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उनको थोड़ा सा कुछ हुआ है तो हम 10 लोगों को फोन करके यही बात बता रहे हैं कि मेरे तो बेटे की तबीयत ठीक नहीं, पोते की तबीयत ठीक नहीं है, उसका कल पेपर है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो जरा सोचें कि हम उसकी वेलफेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक तो हम अपने को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, अब वो मेरे ईच एंड एवरी सेल को ट्रांसमिट हो रही है। जैसे ही वो मेरे ईच एंड एवरी सेल को ट्रांसमिट हो रही है तो मेरे को एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है और मेरा जो ऑरा है वो नेगेटिव बन जाता है। अब नेगेटिव ऑरा बनने से मेरे अंदर में क्या शुरू हो जाते हैं?
कोई ना कोई प्रकार की इलनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है, हम लोग अनहेल्दी फील करते हैं। जब देखो मन स्ट्रांग होता है तो हम कितना पावरफुल फील करते हैं। अब इसी तरह से ये जो मेरी एनर्जी अब देखो बच्चे को भी जा रही है, माना फैमिली में भी जा रही है, फिर उसके साथ साथ वो एनवायरमेंट में भी जा रही है, रिलेशंस में भी जा रही है, क्योंकि हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चारों तरफ कहने का भाव है कि हम लोग कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, कौन सी भेज रहे हैं सरोज बहन? एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं ना। तो जब नेगेटिव भेजेंगे तो उसका जो रिजल्ट है मेरे पास क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। अब नेगेटिव रिजल्ट से मैंने अपने अंदर में दुख अशांति क्रिएट कर लिया, सैडनेस क्रिएट कर ली, वरी क्रिएट कर ली, मैंने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया। अब जब मैंने ये सब चीजें अपने अंदर में एक्यूमुलेट कर ली, अपने अंदर में क्रिएट कर ली, तो अंदर में क्रिएट करने से क्या हो गया? मेरे अंदर में लो एनर्जी, उदासी के वाइब्रेशंस, अंदर में डिप्रेशन, ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब जैसे ही हम लोग राजयोगा करते हैं, मीन्स कनेक्शन विद गॉड, अब मैं हो गई लो वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी बहुत कम है, मुझे अपने आप को चार्ज करना है, तो मैं क्या करूंगी? अपने आप को चार्ज करने के लिए मैं अपना लिंक किसके साथ जोड़ूंगी? किसके साथ जोड़ूंगी? डेफिनेटली जैसे मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, तो मोबाइल डिस्चार्ज होने पे हम लोग क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते हैं ना। कनेक्ट करने के साथ अगर हमारी कोई लंबी यात्रा होती है तो हम क्या करते हैं? अपने साथ पावर बैंक लेके निकलते हैं, isn't it? हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपना कनेक्शन परमात्मा, द सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, which who is eternal, immortal, doesn't come in this cycle of death and birth, उस परमात्मा जो सर्व आत्माओं का पिता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई हैं, ये सब बैरियर्स हमने बनाए हैं। तो इन सब बैरियर से ऊपर उठ करके हमें उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। तो वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। अब यही मेरे अपने गुण थे, हम लोग मास्टर सागर थे। अब मास्टर सागर हम लोग ना रह करके क्या हो गए? हम लोग मास्टर मांगने वाले बन गए। अब जब मांगने वाले बन गए तो अब जब उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे में ये सारे आने लगते हैं, सारी क्वालिटीज आने लगती हैं। कैसे आने लगती हैं? छोटा सा इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप देखो, मैं आपको कहती हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और घर में बैठे बैठे आप अपने फ्रिज को खोलिए, फ्रिज के पास जाएं, अब फ्रिज को खोलिए, खोल लिया। अब फ्रिज में से कोई भी चीज निकाल कर, खाने वाली कोई फ्रूट हो सकता है, उसको लेकर के खाइए। अब अपने घर वालों को भी देख लीजिए, घर में कौन कौन है। देख लिया? देख लिया? हाथ हिलाएं। अब वापस आ जाओ। थैंक यू। अब वापस आ जाइए। क्या देखा आपने? कैसे देखा? फल खाया तो उसका टेस्ट आया? आया? आया फल का टेस्ट? आया? आया ना? घर में कौन कौन है उसको भी देख लिया। आप बैठे तो यही थे प्रोग्राम में, isn't it? आपने कैसे देखा? कैसे देखा है? पहले आपने मन को संकल्प दिया, isn't it? The process is very fast. मन को थॉट दिया कि मन तू चल, वो ऑटोमेटिकली चला गया। फिर वहां गया, उसने फ्रिज खोला, आपने और खोल करके आपने फल को खाया, तो आपके मुंह में सलाइवा आ गया। बुद्धि इधर उधर गई? कहीं नहीं गई। इसी तरह से जब मैंने कहा आप अपने परिवार वालों को देख लीजिए, तो आपने क्या किया? अपने परिवार वालों को भी देखा। देखा या नहीं देखा? देख लिया ना। तो जैसे ही मन और बुद्धि, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो राजयोगा के अंदर बहुत काम करती हैं, और मन और बुद्धि हमारे साथ हमेशा है, इसलिए हमें ना तो कहीं अलग टाइम निकालने की जरूरत है और ना हमें
कहीं किसी और एड्स की जरूरत है, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट फैकल्टीज जो है हमारे अपने साथ हैं, मन और बुद्धि। मन हमारा सोचने का काम करता है, बुद्धि हमारी उस बात को देखने का काम करती है, ठीक है ना। तो जिस तरह से अब हमने उसको देखा, इसी तरह से अगर हम अपने आप को थॉट देते हैं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। विजुअलाइज क्या है करेंगे, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूं और यहां भ्रकुटी के बीच में निवास करती हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीन बार इसको रिमाइंड कराइए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा। अब बताएं कि हमने जब ये सोचा तो हमारी जो वाइब्रेशन है पहले से बेटर फील हुआ या नहीं हुआ? शांति का एहसास होने लगा। मैंने अपने आप को, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, थॉट जनरेट्स फीलिंग। अगर मैं अपने आप को संकल्प दूंगी, कई लोग क्या होता है मेडिटेशन में बैठते हैं ना तो न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं कि हमें कुछ दिखेगा। मेडिटेशन में हमें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हमें थॉट्स अपने आप को देने होते हैं। अब जैसे ही मैंने अपने आप को ये संकल्प दिया तो मेरा थोड़ा नेगेटिव से वाइब्रेशन बदल करके पॉजिटिव हो गया। अब सारा दिन अगर हम अपने आप को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे तो मेरे अंदर में पॉजिटिविटी, पीस बढ़ेगी। और पीस बढ़ने से क्या होगा कि जब कोई सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो उसमें हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मुझे इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हाँ, मुझे प्रियंका इस परिस्थिति में बहुत शांति से रिस्पॉन्ड करना है। सो इट मीन्स राजयोगा में हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जो आने वाली सिचुएशंस है उसमें मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। What do you think? ये तरीका हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम सारा दिन प्रॉब्लम्स ही तो फेस करते हैं ना, वो छोटी हो सकती है, कभी वो बड़े रूप में भी आ जाती है। अगर हमें सिचुएशन में राइट तरीके से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, मानो हमें कहीं करना था एक्ट और कर दिया हमने रिएक्ट, ठीक है ना, तो क्या होगा? हमें दबानी थी, स्पीड कम करनी थी अपनी गाड़ी की, कर दी मैंने तेज, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना, अगर आगे कोई व्हीकल हुई तो इसी तरह से, या मेरी गाड़ी खराब थी और मैंने तेज कर दी तो खुद हो सकता मेरा ही अपनी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो जाए, isn't it? तो इसी तरह से राजयोगा मेडिटेशन करने से हम अपने संकल्पों की स्पीड को कम कर पाते हैं। जैसे मैंने ये 3 अफर्मेशंस अपने आप को दी, सेम अफर्मेशन थी, 3 टाइम्स मैंने दिया, तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर में मैंने शांति को एक्सपीरियंस किया। एज ए रिजल्ट मेरे को उसका रिजल्ट बाहर क्या दिखाई पड़ेगा, ये मेरी अंदर की शांति किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी? पेशेंस में होगी। आप जवाब देंगे तो एकदम तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना, जब आप शांति में हैं तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब टाइम में फिर आप अपने आप को एक दोबारा रिमाइंडर दे लेंगे, नो नो नो, मुझे इस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे मेरी अपनी एनर्जी ही खत्म होती है। सो सबसे पहला बेनिफिट किसको हुआ? मुझे हुआ। मेरे बेनिफिट होने से मेरा चेहरा खुश रहा तो मेरे परिवार को बेनिफिट हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल को बेनिफिट हुआ, मेरा वर्क प्लेस पे बेनिफिट हुआ, सब जगह मुझे ये बेनिफिट देने वाला है। तो इसलिए राजयोगा मेडिटेशन हमें राइट थिंकिंग एंड राइट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग सिखाता है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। नाउ इफ आई वांट टू कनेक्ट टू द हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, अब मोबाइल में तो चार्जर हम फटाफट लगा लेते हैं, लेकिन अब परमात्मा के साथ हमें चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू रिमाइंड माई सेल्फ
हु इज माई फादर? हु इज माई फादर? कौन से फादर की पिक्चर बनी? कौन से फादर की पिक्चर बनी? हु इज माई फादर मीन्स माई सोल फादर। एक तो शरीर के फादर हैं हमारे सबके, एक हमारा नेशन फादर भी होता है, एरिया फादर भी होता है, MLA, isn't it? पर मेरा जो सुप्रीम फादर है वो मेरा रियल फादर है, who is eternal immortal. Now the moment I think about it, my father, he is ocean of peace. अब जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मेरा पिता शांति का सागर है, तो मैंने अपने पिता को याद किया। याद करने से क्या होगा? मेरे अंदर में एंथू आ जाएगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि वो मेरा शांति का सागर पिता है, और मेरे अंदर में ऐसे महसूस होगी जैसे कि शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अब शांति की किरणें जब मेरे ऊपर पड़ रही हैं तो मेरे अंदर में शांति बढ़ती जाएगी और हम सिचुएशंस को बेटर वे में हैंडल करने के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। तो इसलिए योगा हमें केवल एक दिन नहीं मनाना है, इसे हमें वे ऑफ लाइफ बनाना है। क्योंकि कोई व्यक्ति की एक टांग हो दूसरी टांग नहीं हो तो क्या होगा? फिर तो हम ठीक से नहीं चल सकते ना। हमें दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तन और मन दोनों में कनेक्शन ठीक होगा, तो जैसे डॉक्टर सुजाता ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारी इमोशंस जो है, अगर हम इमोशनली हेल्दी हो जाएंगे तो हमारा माइंड बॉडी सोल कनेक्शन जो वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि माइंड हमारा जब स्ट्रांग होने लगता है, जब विचार ही हमें अच्छे जनरेट होने शुरू हो गए, तो डेफिनेटली हमारे इंटेलेक्ट को जो सिग्नल जा रहा है वो कैसा जा रहा है? वो अच्छा ही जा रहा है ना। तो फिर अच्छे सिग्नल्स को क्या करेगी हमारी बुद्धि? ब्रेन को भेज देगी, और ब्रेन हमारे सिस्टम को क्या करेगा? मैसेज कन्वे कर देगा कि यस यू गो अहेड विद दिस, इजंट इट? तो इसलिए हमें मन के विचारों को अच्छा बनाना है, और अच्छा विचारों के लिए हमें रोज रोज ज्ञान लेने की जरूरत है। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? सेल्फ अवेकनिंग का ज्ञान, आत्म ज्ञान जिसको कहा जाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, लोगों के साथ मेरे रिलेशंस क्या है, मेरा फादर कौन है, हाउ वी आर वन, दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली, कैसे है, ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एंड द मोमेंट जितना हमें लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं, 90% डिप्रेशन तो हमारा ऐसे ही दूर हो जाता है। हमारे यहाँ पर अभी एक थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा व्यक्ति आए थे जो बहुत डीप डिप्रेशन में थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। कई आते हैं, मैं तो अभी आपको एक का मिसाल दे रही हूँ, और इतना उनके फैमिली वाले परेशान थे कि हम क्या करें इनसे। तो उनके डायरेक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओ, आपके नजदीक में है ये पालम विहार सेंटर। मैं आपको क्या बताऊं, उनको इतना सीवियर डिप्रेशन था। आते उन्होंने जैसे ही 10 दिन अटेंड किया, उनका डिप्रेशन दूर हो गया, उनको स्लीप बहुत अच्छी आने लगी। लोगों को स्लीप ही नहीं आती आजकल, नींद ही नहीं आती है। हम कहते हैं रात के 10 बजते हैं, बस 10 माना बस, ठीक है दलीप भाई, सो जाओ, उसके बाद कारोबार नहीं करो। जैसे शरीर को खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे का रेस्ट देते हैं ना कि खाना पच जाए, इसी तरह से मन के कारोबार को 8 बजे हमें समेट लेना चाहिए। और उसके बाद में स्लोली वो क्या करेगा, क्योंकि हम एकदम 5th गियर में चल रहे हैं और फिर एकदम हम चाहें कि मन सोने के लिए जाए, सो जाए, वो नहीं सोएगा, उसको रेस्ट की जरूरत है, उसे टाइम चाहिए। जैसे अगर हम बहुत स्पीड से भाग रहे हैं और फिर हम चाहें कि हम एकदम रुक जाएं तो गिरेंगे ही ना, चोट ही लगेगी, पॉसिबल नहीं है। तो उसको स्लो डाउन होने में टाइम लगेगा, और जैसे ही वो स्लो डाउन होगा तो फिर हमें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। इसलिए स्लीप का भी बहुत अच्छा टाइम, क्योंकि योगा से स्लीप भी बहुत अच्छी आती है, 10 to 4 होता है। और 4 बजे के बाद यदि हम लोग सोते हैं तो कहते हैं उसके बाद जो सोता है वो खोता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम,
उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है बहुत ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी माइंड और बॉडी को हार्मनी में लाने में मदद करते हैं। तो वो तो हमने खो ही दिया जब अगर हम सो रहे हैं। तो आजकल हम लोग अपनी शान समझते हैं कि हम लोग लेट सोते हैं, हमें टाइम नहीं। वो ठीक है, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत आते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, पर उन्होंने एक रिलैक्सेशन का जब आर्ट सीख लिया तो दे लर्न हाउ टू रिलैक्स, और फिर वो अपने जो साइकिल है, बॉडी साइकिल, उसको भी रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई ना। पहले इंपॉर्टेंस नहीं थी तो समझते थे कि 8 बजे से पहले उठना भी कोई उठना थोड़ी होता है, संडे को तो 10 बजे तक भी चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस इसलिए लाई कि राजयोग का मेडिटेशन हमारे स्लीप पैटर्न्स को भी ठीक करता है, एंड वी कैन हैव वेरी साउंड स्लीप थ्रू राजयोग का मेडिटेशन ऑल्सो। बहुत ऐसे लोग हैं जो चिंता, फियर, परेशानी में सो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट के लिए 2 मिनट में आपको मेडिटेशन कराती हूँ, और फिर आपको मेडिटेशन कमेंट्री से डिटेल में हमारी अर्चना में कराएंगे। आराम से बैठ जाएं। मन को संकल्प दें। मैं पात्मा प्रकृति के बीच में चित्र बनाएं। मैं एक स्टार हूँ। जहाँ आप बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं मंदिर में, मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है। मैं भी शांत रहूं, जिससे मैं इंटरेक्ट करूं वो भी मेरे साथ शांति से बिहेव करें। सारे काम मेरे अच्छे शांति पूर्वक हो। शांति के पिता परमात्मा से वाइब्रेशंस लें। वो शांति का सागर है। फाउंटेन की तरह उससे वाइब्रेशंस फील करें। और अब सिचुएशंस को शांति से हैंडल करता हुआ अपने आप को देखें। घर में बच्चे लड़ रहे हैं, ऑफिस में कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, पर मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो बहुत शांति से दे रही हूँ या दे रहा हूँ। Peace is my state of mind. This is my way of life. Come back now. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Thank you. Thank you for beautifully explaining कि emotional well-being के लिए thoughts कितने ज़रूरी हैं. It's very important that we think positive if we want to spread positivity around us. और दीदी ने बहुत beautifully explain किया कि एक एक thought से हमारा, so a beautiful line that we speak in Brahma Kumaris is कि think before you think what you're thinking.
सोचने से पहले सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बिकॉज हर विचार हमारा फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। सो हमारे दोनों स्पीकर्स हमारे साथ हैं। सो अगर इनसे दोनों ने बहुत अच्छे से हमें हर पॉइंट एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज हैंड ऑप्शन यूज करिए सो दैट वी कैन अनम्यूट योर, हम आपको अनम्यूट कर सके और आप हमारे स्पीकर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू इमोशनल वेलबींग अगर है तो प्लीज यूज द रेज हैंड ऑप्शन। जैसे समझाया कि अगर हमारे मन और बुद्धि एक साथ हो जाते हैं तो हम अच्छा अनुभव कर पाते हैं, आने वाली परिस्थितियों को हम बिफोर टाइम देख पाते हैं और उनको या आई एम सॉरी सिस्टर, हैव यू टर्न ऑन योर कैमरा? या आप दिख नहीं रहे थे। थैंक यू। हम जो भी विचार देते हैं उसको जब हम मन बुद्धि से देखते हैं तो आने वाली परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है या जीवन को कैसे जीना है वो हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में हम अपने आप को चेक कर पाते हैं और जिस तरह का व्यवहार हम चाहते हैं हम एग्जैक्टली वैसा ही कर पाते हैं। यह ब्यूटी है इस मेडिटेशन की। तो चलते हैं अपनी यात्रा पर और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी स्ट्रेट अलर्ट स्टेज में बैठ जाए, बैक पूरा स्ट्रेट हो, अपराइट, थोड़ा सा फोकस होकर बैठेंगे लेकिन रिलैक्स्ड, बहुत आराम से। कुछ जो भी सजेशंस मैं देती जाऊंगी, थॉट्स देती जाऊंगी, आप उन्हें बस देखते चलिए। जैसे अभी आपने फ्रिज से मुंह निकाल कर खाने का किया आपने एक्सरसाइज, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से हम चलते चलेंगे। तो आप सभी आराम से बैठ गए हैं, अपना सारा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के बीच में जहाँ आप तिलक देते हैं वहां करें, क्योंकि वहां मैं निवास करती हूँ, वहां मेरी शक्ति है। उस शक्ति को ही हमें परिवर्तन करना है, उस शक्ति से ही काम करना है। तो चलते हैं, एक चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। अगर आपको दिखाई ना भी दे तब भी सब बुद्धि से समझ लें कि यहाँ एक चमकता हुआ सितारा निवास करता है रोज के बीच में। अपने को विचार दें, मैं एक चैतन्य शक्ति, अ पावरफुल एनर्जी, शांत स्वरूप हूँ। मैं a point of light is peaceful. मैं शांत हूँ। शांति के हल्के नीले रंग के प्रकाश को आपके मस्तिष्क में शांत होते जा रहा है। अब यह नीला प्रकाश धीरे धीरे
आंखों से होते हुए आपके चेस्ट में फैल रहा है। और उसे रिलैक्स कर रहा है। ये नीला प्रकाश हाथों से होते हुए हाथों की उंगलियों में फिंगर टिप तक फैल रहा है। और आपके हाथों को, उंगलियों को शांत कर देता है। आपके हाथ, उंगलियां शांत हो गई। अब ये नीला प्रकाश चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमेन में, पेट में फैल रहा है। बहुत शांत, अभी आपका चेस्ट और एब्डोमेन दोनों रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। अभी धीरे धीरे ये नीला प्रकाश आपके पैरों से होते हुए पैरों के पंजे तक फैल रहा है। देखें इस प्रकाश को फैलता हुआ धीरे धीरे नीचे की ओर मूव कर रहा है। और आपको शांत करता जा रहा है। आपके पैर रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। अभी आप पूर्णतया शांति की अवस्था में है, टोटली रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। ये नीला प्रकाश आपके शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक सेल में फैल गया। और अभी आपके शरीर के चारों ओर ये प्रकाश फैल रहा है, आपकी बॉडी से रेडिएट हो रहा है। देखें कैसे आपके चारों ओर हल्के नीले रंग का प्रकाश का ऑरा बन गया। चारों ओर जैसे दुनिया शांत हो गई। ये नीला प्रकाश अभी आपके पूरे रूम में फैल गया। इस गहरी शांति की अवस्था में सुख का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। सारी इच्छाएं मर्ज हो गई। इस सुख और शांति की अवस्था में मैं स्वयं को पूर्णतया स्वीकार करती हूँ।
मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे पसंद हूँ। I like myself. I love myself. I accept myself. और अपनी एक्सेप्टेंस के साथ साथ ही अपने साथ रहने को ये एक्सेप्ट करती हूँ। वो जो है, जैसे है, मुझे स्वीकार है। अभी अपनी विशेषताओं को देखें। अपनी एक विशेषता को चुन ले, अपनी आंखों के सामने उसे लेकर आए, लिख दें अपनी आंखों के सामने आपकी विशेषता को, और उसको 3 बारी रीड करें, पढ़े। अभी अपनी खुशी को भी चेक करें। अपने में अच्छा अनुभव हो रहा है। अपने साथ रहने वालों की भी एक एक विशेषता को देखें। हर आत्मा विशेष है। हर किसी का अपना विशेष रोल है। उनकी विशेषता हमें सुख देती है। पुनः उनकी विशेषता को देखते हुए अपनी खुशी के लेवल को चेक करें। बहुत बढ़ गई है। सबके प्रति स्नेह का भाव उमड़ रहा है। सब अच्छे हैं। सब अच्छा है। सब अच्छा होगा। ये फीलिंग उठ रही है और खुशी हो रही है। इस फीलिंग को थोड़ा डीपर करें। रिपीट करें स्वयं के साथ। सब अच्छे हैं। सब अच्छा होगा। सब अच्छे हैं। सब अच्छा है। सब अच्छा होगा। आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। परिस्थितियों का सामना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब अच्छा ही होना है। इस शांति की अवस्था में अपने जीवन का कोई भी परिस्थिति सामने ला सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। लाए कोई प्रॉब्लम सामने, बहुत छोटी छोटी भी बहुत होती है। रोजमर्रे की
रूटीन की भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आए और उनका सलूशन देखें। इस शांति में ही उसका सलूशन है और सिर्फ आपके पास ही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। अभी आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का और सैटिस्फाइड, क्योंकि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। मैं अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं, सब अच्छा होगा। भगवान हमारा साथी है। इसी शांति की अवस्था में स्वयं को या अपनी कॉन्शियसनेस को, चैतन्य शक्ति को, उस चमकते हुए सितारे को अपने सिर से 1 फुट ऊपर अनुभव करें। देखें अपने सिर के ऊपर उस चमकते हुए सितारे को। आप इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आप शरीर के अधीन नहीं, शरीर आपके अधीन है। यू आर द मास्टर। फील करें, मैं कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हूँ। कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चलती है। मैं जो चाहूं वो देख सकती हूँ, जो चाहूं वो इग्नोर कर सकती हूँ। आई एम द पावर, आई एम द मास्टर। मैं जो बोलना चाहूं वो बोल सकती हूँ और जो नहीं बोलना चाहती हूँ उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं जो सुनना चाहूं वो सुनती हूँ, जो इग्नोर करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। आई हैव द पावर। सब कुछ सुनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सब कुछ देखना मेरे लिए जरूरी नहीं है। जोर से या रौब से बोलना, गलत बोलना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं अपनी शांति में रहकर शांति से व्यवहार कर सकती हूँ। मैं एक श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। शांति मेरा धर्म है। शांति मेरा जीवन है।
और उस शांति में ही परमात्मा की प्यार की प्राप्ति है, यह अनुभूति है। इस शांति में ही मैं स्वयं से कनेक्ट हो सकती हूँ, अपने अंतर्मन की आवाज सुन सकती हूँ। और अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले सकती हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। Thank you, Dr. ओम Archana. शांति। Om Shanti. ओम Thank you, Doctor, for a wonderful experience. आपने हमें बहुत अच्छे से शांति का अनुभव कराया। अब राज योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए मुझे 2 लाइंस जो गीता में लिखी हैं वो याद आ रही हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। जिसमें परमात्मा ने कहा है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। सो हमें बस ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं। राजयोगा मेडिटेशन वो मेडिटेशन है जो परमात्मा स्वयं आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हर स्टेप हमें अपने जीवन में कैसे लेना है, उसको अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना है। क्योंकि जब परमात्मा गाइड कर रहे हैं तो क्यों ना बेस्ट टीचर को अपना बेस्ट गाइड को अपना साथी बना ले। सो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग्स आर फ्रॉम 5 एंड डॉक्टर अर्चना विल बी टेकिंग दैट कोर्स। सो आप जो भी उस कोर्स के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने डिटेल्स दे देंगे, सो दैट आप भी इसको अपना ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल बना सकते हैं एंड परमात्मा को अपना साथी बना सकते हैं। Thank you all so much for joining, and I'm sure the way I enjoyed, you all also enjoyed, and you have all gained a lot through this session. Thank you. एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। एक तो इसी से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड। जिस जूम लिंक पर आपने आज ज्वाइन किया है, इसी जूम लिंक पर आप ज्वाइन करेंगे कल 5 बजे ही, ये सभी जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कहना है कि 24 तारीख को मम्मा डे है। माना इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कुमारी आई और जिसने बहुत अपनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, तो एक सेशन रखा है 23 तारीख को। 23 तारीख माना कि बुधवार को सवेरे सेशन रहेगा कानपुर की आदरणीय विद्या दीदी जी के साथ में, जो मम्मा के साथ अंग संग रही और उन्होंने देखा उनको, तो उनके अनुभव रहेंगे मॉर्निंग मुरली क्लास के बाद। तो 7:45 और 7:30 के बीच में उनका सेशन आरंभ होगा। आप अपने सब रिलेशंस और फ्रेंड्स को जरूर बता दें, ठीक है? और नए भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रेरणादायक होगा। Thanks for attending this session. Thank you very much. Thank you, Aarti, for conducting this session beautifully. Thanks to everyone. विपिन भाई एक नंबर डिस्प्ले कर दे, उस पर नोट करा देंगे जो जो इस कोर्स को करना चाहते हैं। संभव है विपिन भाई? जी दीदी, मैं चैट बॉक्स में भी दे देता हूँ और डिस्प्ले भी कर देता हूँ। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
नंबर सभी नोट कर ले, अपने रिलेशंस और फ्रेंड्स बता सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। 7641। सभी लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे प्लीज, व्हाट्सएप करेंगे राजू लिख करके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सावित्री बहन आप कहाँ से हैं?